السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 4 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سٹوری میں بیک گراؤنڈ ساؤنڈ موجود ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ کو کون سا ورژن زیادہ پسند آتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آئیے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بے شک کئی بار سننے میں آئے تھے، لیکن یہ قبرستان ایسے کسی واردات سے محفوظ رہا تھا؟ کیا ایسے کسی کام کا آغاز جہاں بھی ہو گیا ہے؟ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس نے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کی۔ تنہا تھا، پتہ نہیں کیا قصہ ہے۔ اس وقت اس جگہ جا کر تحقیقات کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر نہ جانے کیوں خوف کا احساس اتنا شدید ہوا کہ وہ اندر آ گیا۔ ابا بھی موجود نہیں ہیں۔ گلاب خان مکمل طور سے قبرستان کا محافظ تھا، ایک قبر پر نگاہ رکھتا تھا، فرض بھی پورا کرتا تھا اور اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتا تھا۔ بہرحال نہ جانے کب تک وہ اس بارے میں سوچتا رہا اور پھر نیند آ گئی۔ صبح جاگا تو رات کے واقعات یاد آ گئے۔ اگر وہ ایسے لوگ تھے جو اپنے کسی قریبی عزیز کی قبر پر دیوار سے کود کر آ گئے تھے اور فاتحہ خوانی وغیرہ کر رہے تھے، تو پھر اس طرح بھاگے کیوں؟ وہ تیز روشنی جو انتہائی سفید تھی کسی ٹارچ وغیرہ کی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ٹارچ اتنے بڑے حصے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال اس نے ہاتھ منہ وغیرہ دھویا اور اس کے بعد بہن سے چائے مانگی۔ منیزا نے اسے چائے دی اور پھر اس نے سر پر کپڑا لپیٹا اور پھاوڑا وغیرہ لے کر باہر چل پڑا۔ منیزا نے اسے دیکھا تو بولی، واہ ڈاکٹر صاحب واہ، تمہارے ہاتھوں میں تو چیر پھاڑ کے اوزار ہونے چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے وہ جو پیٹ پھاڑ کر کیا جاتا ہے؟ شہباز ہنس پڑا۔ اس نے کہا، دیکھا اماں، میری بہن مجھے کسائی کہنے پر تلی ہوئی ہے۔ چیر پھاڑ کرنے والے تو کسائی ہوتے ہیں۔ بس اس بیچاری کو کیا معلوم۔ اماں، وہ کیا ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ آپریشن، شہباز بولا۔ ہاں وہی، منیزا بولی۔ آپریشن مختلف قسموں کے ہوتے ہیں منیزا، میں تو صرف اپنا فرض پورا کرنے جا رہا ہوں۔ ابا صبح اٹھنے کے بعد قبرستان کا پورا چکر لگاتے ہیں۔ کوئی قبر خراب ہوتی ہے یا کسی کی مٹی بیٹھی ہوتی ہے تو ابا اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ میں بھی وہی کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تجھے خوش رکھے بیٹا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی دل میں اللہ کا ایسا خوف رہنا چاہیے۔ اس طرح ڈاکٹر رہتا ہے، کسائی نہیں بننے پاتا۔ اماں، میرے لیے ہمیشہ یہی دعا کرنا کہ میں ڈاکٹر ہی رہوں، شہباز نے کہا اور پھوڑا کندھے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ حلیہ بھی ایسا ہی بنا لیا تھا یہاں آ کر، جبکہ وہ ایک خوش لباس ڈاکٹر تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت قمیض شلوار اور کندھے پر پھاوڑا دیکھ کر اسے کوئی بھی یہ دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ بے شک گورکن ہے مگر خوبصورت آدمی ہے۔ قبروں کی دیکھ بھال کرتا ہوا وہ آگے بڑھتا رہا۔ اسے دو آدمی کھڑے نظر آئے جو قبر پر فاتحہ خوانی کرنے آئے ہوئے تھے۔ صبح کو پھول بیچنے والا پڑوسی لڑکا گیٹ کھول دیتا تھا، ذمہ داری اسی کے سپرد تھی کیونکہ اس سے اس کا روزگار چلتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا رہتا تھا جس سے گلاب خان اکثر کام لے لیا کرتا تھا، اس کا نام رحیم تھا۔ رحیم نے شہباز کو دیکھا تو جلدی سے 2 کنستروں میں پانی بھر کر لے آیا اور ان دونوں افراد کے پاس پہنچ گیا جو فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ دونوں آنے والوں نے پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھتے رہے۔ کوئی کام نہیں تھا یہاں، اس لیے شہباز آگے بڑھ گیا اور پھر فاصلہ طے کر کے رات والی قبر پر پہنچ گیا، لیکن قبر کی حالت دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ قبر باقاعدہ کھودی گئی تھی اور سلپس نکال کر ایک طرف ڈال دی گئی تھیں، مٹی دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شہباز ایک بار شدید تجسس کا شکار ہو گیا۔ رات کو اس نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا اس وقت وہ کچھ اور ہی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس نے پھاوڑا ایک طرف رکھ کر جلدی سے کھلی ہوئی قبر میں نگاہیں دوڑائیں، دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر کسی نے کفن چرانے کی کوشش کی تو اس میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ جب قبر میں جھانکا تو اسے ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ لاش قبر کے اندر موجود تھی، کفن بھی جسم پر تھا لیکن چہرہ کھلا ہوا تھا، لمبے لمبے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور نسوانی وجود کے نقوش نمایاں تھے۔ بے حد دلکش چہرہ، لیکن سب سے زیادہ حیرت ناک بات تھی وہ یہ کہ اس کے پہلو میں ایک نوزائیدہ بچی نظر آ رہی تھی۔ بچی اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور انتہائی حیرت ناک منظر یہ تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ناممکن، قطعی ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔
सारा खौफ और तजस्सुस ज़हन से निकल गया और फर्ज जाग उठा। कुदरत के काम कुदरत ही जाने, वो जिसे जिंदगी देना चाहे दे सकता है, भला उसके लिए क्या मुश्किल है। तवील अरसे तक मलबे तले दबे रहने वाले इंसानों को उसने जिंदगी से नवाजा। शदीद तरीन जल्जले से जो मुतासर हुए, इनमें से बहुत सौ ने जिंदगी पाई। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो सब कुछ भूल कर कब्र में उतर गया। फिर उसने किसी बात की परवाह किए बगैर नौज़ायदा बच्ची को कब्र से निकालकर सीने में छुपा लिया। उसके बाद एक लम्हे के अंदर अंदर वह कब्र से बाहर निकला और तेजी से दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। हैरत ने उसे दीवाना कर दिया था। घर में दाखिल हुआ तो जीरा और मनीजा उसे हैरत से देखने लगी। फिर उन्होंने उसके हाथों में दबी हुई शय को देखा और आगे बढ़ आईं। उसने हाँफते हुए लहजे में कहा, अम्मा तुम इसे संभालो, मैं अभी आता हूँ। उसने बच्ची को माँ की गोद में दिया और दौड़कर अंदर से स्टेथोस्कोप और एक आध चीज निकाली। उसके बाद बाहर निकल गया। जीरा और मनीजा हैरत से उस बच्ची को देखती रही। जीरा ने कहा, हाय हाय, अरे मनीजा तू जल्दी से पानी गर्म कर, ये अभी पैदा हुई बच्ची लगती है, ये कहाँ से मिल गई इसे। मैं पानी गर्म करती हूँ अम्मा। वो दोनों बच्ची की सफाई सुथराई में लग गईं। शहबाज एक बार फिर कब्र के पास पहुंचकर कब्र में उतर गया। फातिहा ख्वानी के लिए आने वाले जा चुके थे और अब रहीम के सिवा कब्रिस्तान में और कोई नहीं था। कब्र में जगह बेशक तंग थी, लेकिन जिस तरह भी बन पड़ा उसने आला लगाकर औरत की धड़कन का जायजा लिया। तमाम तर मायने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि औरत में जिंदगी के कोई आसार नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर मुर्दा है। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि वो जिस्मानी तौर पर अभी बिल्कुल ठीक थी, जबकि उसकी तदफीन के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि कब हुई है। ये सारा जायजा लेने के बाद कि अब औरत में जिंदगी के आसार बिल्कुल नहीं है और किसी लाश को कब्र से निकालना कानूनी और इखलाकी तौर पर जुर्म है, उसने गहरी सांस लेकर रहीम की तरफ देखा जो उसके बिल्कुल बराबर खड़ा हुआ था। फिर उसने कहा, आओ कब्र बंद करें। रहीम खामोशी से उसके साथ कब्र बंद करवाने लगा और उसके बाद मिट्टी से पूरी कब्र दुरुस्त कर दी गई। क्या किस्सा है साहब जी? रहीम ने पूछा। बस रहीम, किसी जानवर वगैरह ने ये कब्र खोद दी थी। जानवर ने स्लिप्स भी हटा दी थी साहब जी। पता नहीं वो जानवर था या इंसान। वैसे रहीम तुम ये बताओ, मैं तो शहर में होता हूँ, कभी यहाँ से कोई लाश चोरी हुई है या कफन वगैरह चुराया गया है? नहीं जी, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी, न कफन चुराया गया है न लाश। क्या लाशें भी चुराई जाती हैं साहब जी? इंसान पता नहीं क्या कुछ करता है, जाओ तुम हाथ वगैरह धो लो, उसने रहीम को टालते हुए कहा। बच्ची के लिए उसके दिल में शदीद तजस्सुस था। वो बरक रफ्तारी से घर की जानिब बढ़ा। घर में भी खूब हंगामा आराई हो रही थी। मनीजा ने बच्ची को खूब साफ सुथरा कर लिया था। वो बेहद जाजिर निगाह थी और मनीजा उस पर कुर्बान हुई जा रही थी। माँ ने उससे पूछा, कौन है ये शहबाज? तूने कुछ बताया नहीं इसके बारे में, कहाँ से ले आया है इसे? शहबाज ने एक गहरी सांस ली और बहन से बोला, अब इस बच्ची को थोड़ा सा लिटाओ और मुझे चाय बना कर दो। मनीजा ने बच्ची को माँ की गोद में दिया और इसके बाद चाय बनाने चलेगी। जीरा मुसलसल तशवीश का शिकार थी। बता तो सही, गहरी गहरी सांसें ले रहा है, तेरे किसी मरीज की बेटी है ये? भला कब्रिस्तान में कहाँ से आ गई? अम्मा, ऐसी अनहोनी हुई है कि किसी को बताऊं तो वो मुझ पर खूब हंसेगा। बात क्या है, मुझे बता तो सही। शहबाज ने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा तो मुझे एक बात बता अम्मा, फर्ज कर कि अगर कोई लड़की या औरत माँ बनने वाली हो और उसका इंतकाल हो जाए तो क्या उसकी मौत के बाद उसके यहाँ औलाद पैदा हो सकती है? हैं? जीरा का मुंह हैरत से खुल गया। फिर वो बोली, ले, मुझे क्या मालूम, तू डॉक्टर है, तुझे इतनी सी बात भी नहीं पता है? माँ के साथ औलाद भी मर जाती है क्योंकि उसे सांस नहीं मिलती, मगर तू ये सवाल क्यों कर रहा है? मैं तुझे बताऊं अम्मा, ये बच्ची एक बंद कब्र में थी। कब्र थोड़ी सी खुली हुई थी, इसमें मुझे वो मुर्दा औरत नजर आई, मगर उसके पहलू में ये जिंदा बच्ची लेटी हुई थी। कब्र बंद थी पहले? तो और क्या अम्मा, मुझे तो ये नहीं मालूम कि अब्बा ने कब इस मैयत को दफनाया था। कैसी बेअक्ली की बातें कर रहा है, एक बंद कब्र में और कोई जिंदा बच जाए? वैसे अल्लाह मियाँ मौजज़े दिखाता रहता है, वो जो चाहे कर सकता है, मगर मजाक कर रहा है तुम मुझसे शहबाज? अम्मा, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ही हुआ है। बस तू ये समझ ले कि ये बच्ची मुझे एक कब्र से मिली है
और वो अपनी माँ के पहलू में लेटी हुई थी। और माँ मर चुकी है? हाँ अम्मा, कितनी बार बताऊं, मैंने आले से पूरी तरह उस औरत को चेक किया है और इस बात की गुंजाइश नहीं छोड़ी कि उसमें जिंदगी हो। ये तो बस मोहल्ला का करम है, पता नहीं क्या किस्सा है। इतनी देर में मनीषा चाय लेकर आ गई थी। हाँ भैया, बताया तुमने अम्मा को? कौन है ये बच्ची? जो कुछ ये बता रहा है मनीषा, तू सुनेगी तो हैरान रह जाएगी। माँ ने मनीषा को तफसील बताई तो मनीषा शरारत भरी निगाहों से शहबाज को देखने लगी। फिर बोली, और अब तुम भैया की बात पर यकीन कर लोगी, ये तो इस तरह की शरारतें करते रहते हैं, किसी दोस्त वगैरह की बेटी होगी। अरे तो बिल्कुल पागल है, दोस्त के यहाँ बेटी पैदा हुई और उसने हमें उसकी सफाई सुथराई के लिए भेज दिया है। मनीषा का मुंह भी हैरत से खुल गया था। फिर उसने मोहब्बत भरी निगाहों से बच्ची को देखते हुए कहा, तब तो फिर यही कहा जाएगा कि ये अल्लाह ने हमें दी है। हाय कितनी प्यारी है। शहबाज, मैं ले लूं? मनीषा के अंदाज पर शहबाज हंस पड़ा। फिर बोला, ये तो ऐसे कह रही है अम्मा जैसे मैं बाजार से कोई चीज खरीद कर लाया हूं और ये मुझसे मांग रही है। बड़ी उलझन की बात है अम्मा, तू यकीन कर, मेडिकल साइंस इस बात की नफी करती है कि कब्र में कोई माँ बनने वाली औरत दफन हो जाए और उसके बाद कब्र में ही बच्ची को जन्म दे दे। कोई भी सुनेगा तो हंसेगा, और मैंने भी अपनी मेडिकल की तालीम में ऐसी कोई बात कभी नहीं पढ़ी। सच्ची बात तो यह है कि मैं अपने सीनियर्स को बताऊंगा तो वो भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक तजुर्बा होगा जिंदगी का। सीधी सादी औरतें भला इस बारे में क्या बहस करती। पूरा दिन गुजर गया, बच्ची खुशो खुरम थी। मनीषा ने कुछ चीजें शहबाज को लिखवा दी और वो बाजार चला गया। दूध के फीडर, दूध के डब्बे, कपड़े, ये सारी चीजें लेकर वो वापस आ गया। शाम हो गई और फिर रात भी गुजर गई। बच्ची मनीषा के पास ही सोई थी। फिर दूसरे दिन गैर मुतवक्किल तौर पर गुलाब खां वापस आ गया। हालांकि वो 2-3 दिन के लिए कहकर गया था, लेकिन न जाने क्यों उसकी वापसी हो गई। जीना ने पूछा तो बोला, बस वो लोग किसी शादी में जा रहे थे, मैंने सोचा कि मेरी वजह से उनकी शादी का प्रोग्राम खराब ना हो, मिल आया उससे, बस मिलना ही था। और फिर मेरा बेटा भी काफी दिन के बाद शहर से आया है, उसके साथ भी तो कुछ वक्त गुजारना था। गुलाब खां ने प्यार से बेटे को देखते हुए कहा। फिर बोला, तुम लोगों के चेहरे पर ऐसी कोई बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या हुआ है? नहीं अब्बा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप आराम से बैठो, बताऊंगा। इसका मतलब है कोई बात है? हाँ, बड़ी हैरत की बात है। क्यों, क्या हुआ? अब्बा, वो जो नीम के दरख्त के पास एक कब्र बनी हुई है, कितनी पुरानी है? ले, नीम के दरख्त के पास तो बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं, कौन सी कब्र की बात कर रहा है तू? मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो कब्र। क्यों, क्या हुआ उस कब्र को, कोई बात तो बता। अब्बा, मैं रात को बैठा हुआ था, कोई 12-12:30 बज चुके थे, बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने देखा कि कुछ लोग उस कब्र के पास मौजूद हैं और वहां थोड़ी सी रोशनी हो रही है। मैं इंतजार करता रहा, फिर किसी तरफ से कब्र पे एक तेज रोशनी पड़ी और वो लोग दीवारों को कूदकर भाग गए। तब मुझे हैरत हुई। रात को तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन सुबह को मैंने उस कब्र के पास जाकर देखा तो कब्र खुली हुई थी, सीलें हटी हुई थी। कब्र में एक कफनपोश औरत की लाश नजर आ रही थी जिसका चेहरा खुला हुआ था, लेकिन जो हैरानी की बात थी वो ये थी कि उसके बराबर ही एक नौज़ायदा बच्ची लेटी हुई थी जो जिंदा थी। क्या बक रहा है जीरा, क्या कह रहा है ये? सच कह रहा है, हम तो खुद हैरान हैं। फिर क्या हुआ? गुलाब खां ने पूछा। अब्बा, औरत तो मुर्दा थी, मैंने उसका अच्छी तरह जायजा ले लिया, मगर बच्ची जिंदा थी। मैं इसे निकाल लाया। कहाँ गई वो? अंदर मौजूद है। क्या? गुलाब खां का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ अब्बा, अंदर मौजूद है, तंदुरुस्त है, उसके लिए मनीषा ने चीजें मंगवा ली हैं और वो आराम से है। मगर कौन सी कब्र की बात कर रहा है? तू चल, जरा मुझे दिखा। आप आराम से बैठो, कुछ चाय पानी पियो। पागल हो गया है तू? इतना हैरान कर दिया है तूने मुझे कि अब भला चाय पानी की गुंजाइश है? चलो मेरे साथ। और फिर शहबाज बाप को उस कब्र के पास ले गया जिस पर अब उसने मट्टी डालकर बराबर कर दिया था। अरे बाप रे बाप, ये कब्र! क्यों अब्बा, कोई खास बात है? मगर ये कब की बात है बेटा?
تو نے کب اس بچی کو نکالا؟ ابا کل ہی کی بات ہے، اس کو تو 7-8 دن ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 7-8 دن ایک بچی بند قبر میں رہ رہی ہو؟ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا، بس جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ سچ ہے۔ بچی گھر میں ہے؟ ہاں ابا۔ بس بیٹا یہ ہوا تھا کہ اس رات بھی بارش ہو رہی تھی اور میں گھر کے باہر بیٹھا ہوا قبرستان میں سوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہ دور سے ایک جنازہ آتا ہوا نظر آیا۔ 12 بج چکے تھے، 12 بجے کے بعد تدفین کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی صبح کو میت لے آنا، مگر نہیں مانے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس علاقے کا انسپیکٹر ہوں، دوسرے کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ مجسٹریٹ ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی قانون تو آپ نے خود ہی بنایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مجبوری ہے، ہم رات بھر میت کو نہیں رکھ سکتے، مجبوراً مجھے تدفین کرنا پڑی۔ ابا رجسٹر میں ان کا نام پتہ تو لکھوایا ہوگا آپ نے؟ ہاں بالکل ہے۔ مجھے دکھائیے کون لوگ ہیں، ذرا تھوڑی سی معلومات کی جائے، قصہ کیا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔